very good afternoon to one and all present here. I, Miss Priya Advani, is your host for the day. As we all know, today we have gathered here to witness the Interhouse English Elocution Competition 2021-22 for grades 6 to 8. It is rightly said, competition is very good as long as it's healthy. It's what makes one strive to be better. The objective of today's competition is to help students develop confidence, strengthen language skills, build vocabulary, and inculcate public speaking qualities. With a thunderous round of applause, let's begin the competition. Dearest creature in creation, studying English pronunciation, I will teach you my verse. Sounds like chords, corb, horse, and verse. I will keep you Susie busy. Make your head with heat grow dizzy. Tear in eye, your dress you'll tear. So shall I, oh hear my prayer. Pray console your loving poet. Make my coat look new dear. Just compare heart, hear, and heard, dies and died, Lord and word. Confused? Well, there's no confusion, my dear. As we have gathered here to witness the Interhouse English Elocution Competition, what better way to start this event with a classic poem, The Chaos, written by Gerard Knowles Trinity, which demonstrates the irregularities of English speaking and pronunciation. When the mood is already set, then why wait any further? On this occasion, I take the privilege in introducing our judges for today's competition. The first judge for the day is Miss Khushnuma Gandhi. The second judge for the day is Miss Sulagna Banerjee. And the third judge for the day is Miss Delna Daruwala. We welcome you, ma'am, for the Interhouse English Elocution Competition 2021-2022. Before we begin, let's have a look at the rules. The rules for the competition are as follows. The theme for the Interhouse English Elocution Competition 2021-2022 is humor. The poem may not exceed beyond 3 minutes in duration. The time limit will be strictly enforced. Poem must be recited with proper intonation, voice modulation, and expression. It should not be in a sing-song manner. Voice of the participants must be clear and audible. Any use of background music or props are prohibited. Reading from the paper will lead to disqualification of the participant. The students are expected to keep their cameras on throughout the competition and microphones muted at all times unless asked otherwise. Decisions of the judges will be final and binding. The criteria of judgment will be memory, pronunciation or diction, voice modulation, expression, and content. Wish you all the luck, dear participants. So, my dear friends, practice like you have never won, perform like you have never lost. With this spirit in mind, let's begin with the competition. We begin with the Gamma House. The participant for the Gamma House is Rudra Bagaria. He will be reciting the poem If the World Was Crazy by Cel Silverstein. The poem is taken from his book Where the Sidewalk Ends, that talks about what he would do if the world was crazy. May I now request Rudra to begin with his performance. I, Rudra Bagaria, from class 7A, will now recite a poem. If the World Was Crazy by Shel Silverstein. If the world was crazy,
You know what I'd eat? A big slice of soup and a whole pot of meat, a lemonade sandwich, and then I might try some roasted ice cream or a bicycle pie, a nice notebook salad, and underwear roast, an omelette of hats, and some crisp cardboard toast, a thick malted milk made from pencils and daisies. And that's what I'd eat if the world was crazy. If the world was crazy, you know what I'd wear? A chocolate suit and a tie of eclair, some marshmallow earmuffs, some licorice shoes, and read a paper of peppermint news. I'd call the boys Susie and I'd call the girls Harry. I'd talk through my ears and always would carry a paper umbrella for when it grew hazy to keep in the rain if the world was crazy. If the world was crazy, you know what I'd do? And walk on the ocean and swim in my shoe and fly through the ground and skip through the air. I'd run down the bathtub and bathe on the stair. When I met somebody, I'd say goodbye, Joe. And when I was leaving, I'd say hello. Even the greatest of men would be silly and lazy. So I would be the king if the world was crazy. If the world was crazy. Thank you. The next we begin with the Beta House. The participant from the Beta House is Jash Savani. He will be reciting the poem The Snakes at School by Pamela J. Langton. This poem is based on a true Australian story. The snakes were all recovered and returned to their creek. But important lessons had been learned as a result of the incident. May I now request Josh to begin with his performance? Yes. Good afternoon. My name is Jash Savani. I am from grade 7th A. I am going to recite the poem The Snakes at School by Pamela J. Langdon. It wasn't that I hated school. The creek enticed us more. My mate and I hung out there to chase frogs, catch fish, explore. One day I built a fortress, moved rocks, tied sticks. Then saw a wondrous sight, a ball of baby snakes. We should have pondered longer, but we thought our find so cool. We stuffed the baby snakes back to our bag and took them back to school. As the school bell jangled, the hall began to fill. We flung the baby snakes along the ground. Then screams rang loud and shrill. We expected a ripple, a tiny bit of fun. Some girls might get a little fright and some might even run. Instead, it was a tidal wave. Lockers and chairs tumbled as kids and teachers panicked. Our confidence soon crumbled. The hallway was a war zone. The all floor strewn rubble. Although baby snakes were harmless, we knew we were in trouble. Our tender ages saved us. We knew we crossed the line. They talked of court and consequences and preached moral decline. But we learned the worthy lessons, although in some confusions, when a penalty for wagging school was to get a week's exclusion. And though we were repented and we did receive fright, others often broke rules and their punishment seemed light. They swore and took the teachers' names. We saw them fight and smoke. But that day we learned the greater sin is to play a practical joke. Thank you. The next we have is the Alpha House. The participant from the Alpha House is Mitansh Jain. He will be reciting the poem Sick by Shel Silverstein. This poem originally appeared in his book Where the Sidewalk Ends, which explores the themes of deceit, obligations, and joy. It is about a little girl who's trying to convince her parents not to send her to school as she keeps naming diseases. I would now like to request Mitansh to begin with his performance. Good afternoon. I'm Mitansh Jain from Alpha House. Will be reciting the poem Sick by Shel Silverstein.
I cannot go to school today, said little Peggy and McKay. I have the measles and the mumps, a gash, a rash, and purple bumps. My mouth is wet, my throat is dry. I'm going blind in my right eye. My tonsils are as big as rocks, and I've counted 16 chicken pox. And there's one more, that's 17. And don't you think my face looks green? My leg is cut, my eyes are blue. It might be instamatic flu. I cough and sneeze and gasp and choke. I'm sure that my left leg is broke. My hip hurts when I move my chin. My belly button's caving in. My back is wrenched. My ankle sprained. My appendix pain each time it rains. My nose is cold. My toes are numb. I have a sliver in my thumb. My neck is stiff. My spine is weak. I hardly whisper when I speak. My tongue is filling up my mouth. I think my hair is falling out. My elbows bent. My spine ain't straight. My temperature is 108. My brain is shrunk. I cannot hear. There is a hole inside my ear. I have a hangnail. And my heart is. What? What's that? What's that you say? You say today is Saturday. Goodbye. I'm going out to play. Thank you. Lastly, on the list, we have the Delta House. The participant from the Delta House is Ashita Kamath. She will be reciting the poem Television by Roald Dahl. This poem is a comic take on the dangers of watching television and what a parent can do to save their child. The poem is popular worldwide for its brilliant style, earthly and uncomplicated tone, and a strong message. I now request Ashita to begin with her performance. I, Ashita Kamath from grade 7A, will be reciting a poem called Television by Roald Dahl. The most important thing we have learned so far as children are concerned is never let them near your television set. Or better still, just don't install the idiotic thing at all. In almost every house we have been, we have watched them gaping at the screen. They loll and slop and lounge about and stare until their eyes pop out. Last week in someone's place we saw a dozen eyeballs on the floor. They sit and stare and stare and sit until they are hypnotized by it, until they are absolutely drunk with all that shocking ghastly junk. Oh yes, we know it keeps them still. They don't climb out the windowsill. They never fight or kick or punch. They leave you free to cook their lunch and to wash the dishes in the sink. But did you ever stop to think, to wonder just exactly what this does to your beloved dot? It rots the sense in the head. It kills imagination dead. It clogs and clutters up the mind. It makes a child so dull and blind. He can no longer understand a fantasy, a fairyland. His brain becomes as soft as cheese. His power of thinking rust and freeze. He cannot think, he only sees. All right, you'll cry, all right, you'll say. But if we take the TV set away, what shall we do to entertain our darling children? Please explain. I'll answer this by asking you. What use the darling ones to do? Have you forgotten? Don't you know? I'll say this very loud and slow. They used to read. They'd read and read and read and read and then proceed to read some more. Great Scott Gazooks! One half their lives was reading books. Oh, books! What books they used to know. Those children living long ago. So please, oh please, we beg, we pray, go throw your TV set away. And in its place you can install a lovely bookshelf on the wall.
then fill the shelves with lots of books, ignoring all the dirty looks. Fear not, because we promise you that in about a week or two of having nothing else to do, they'll now begin to feel the need of having something to read. They'll grow so keen, they'll wonder what they'd ever seen in that ridiculous machine. And later, each and every kid will love you more for what you did. Thank you. Before we move to the next session, I would like to read a quote by Howard Coswell. The ultimate victory in competition is derived from the inner satisfaction of knowing that you have done your best. Our students have done their best, and we wish them all the best for the results. The results will be announced live on the social media platform, and the details of the same will be communicated later. I would now like to request Dr. Sharda Sarser to continue with the Interhouse Hindi Elocution Competition 2021-2022. धन्यवाद प्रियामिश। मौका है, दस्तूर है, तो आज निभाएंगे भी हम। मौका है, दस्तूर है, तो आज निभाएंगे भी हम। सबके चेहरों पर हंसी लाएंगे भी हम। आप साथ देंगे तो आज के जश्न को शानदार और यादगार बनाएंगे भी हम। इन्हीं पंक्तियों के साथ सर्वप्रथम मैं हमारी मार्गदर्शक माननीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य, निर्णायक मंडल के सभी सदस्य, शिक्षकगण और मेरे समक्ष बैठे छात्रों के रूप में देश की भावी आशाओं की गरिमा में उपस्थिति का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। खुशियों से भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ। आपकी गरिमा में उपस्थिति से काव्य प्रतियोगिता का कार्यक्रम आरंभ हुआ और खास हुआ। अब मैं निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों से इंदिरा मिस, राकेश सर और रोहित सर से आग्रह करूंगी, कृपया वे अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। अब चुप बैठा नहीं जाता, चलो कुछ बात करते हैं। मजा आए कुछ ऐसा, काम कोई ऐसा करते हैं। हमें अच्छी नहीं लगती खामोशी, अगर आप ताली बजा दें तो काव्य पाठ आरंभ करते हैं। धन्यवाद। इंतजार की अब घड़ी आ गई है, तो सबसे पहले कक्षा 8वीं बीटा हाउस से आ रहे हैं माहिर शाह, जो अपनी रेल यात्रा का अनुभव लेकर आए हैं। सुनिए और आनंद लीजिए। माहिर शाह। मैं माहिर शाह बीटा हाउस की तरफ से आपके समक्ष यह कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रेल यात्रा, महेंद्र अजनबी की हास्य कविता। एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या, चढ़ाए गए, कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए। भीड़ का ये हाल था, मत पूछिए, कमाल था। सीट पर भी आदमी थे, बर्थ पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने उससे ऊपर तक जगह ही नहीं बनाई, वरना आदमी वहां भी होते भाई। और हमारे आगे वाला व्यक्ति तो शायद गैस का मरीज था, और पता नहीं क्या खा के आया था कि सारे वातावरण में भारी प्रदूषण फैलाया था। हमसे वहां खड़ा ही नहीं हुआ जाता था, क्योंकि हर 15 मिनट बाद एक गैस कांड हो जाता था। एक जगह ट्रेन ने 8 घंटों का समय गुजार डाला, तो एक नए दूल्हे से बर्दाश्त ही नहीं हुआ वो गड़बड़ घोटाला। फौरन जाकर ड्राइवर से बोला, भाई अगर आप गाड़ी इसी तरह चलाते जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे। हम अपने स्टेशन पर अपनी दुल्हन
हमारी 6 महीनों की सजा थी ना, मुझे तो लगता है ट्रेन में ही पूरी हो जाएगी। और थोड़ी ही देर में ट्रेन चल पड़ी और बहुत सारे किस्से और कहानियों के साथ हमारी यह रेल यात्रा अपने मंजिल पर जाकर समाप्त हुई। धन्यवाद। मुस्कुराओ कि जिंदगी इस तरह लौटे जैसे रेत की तह पर नमी लौटे। अब आपको गुदगुदाने आ रहे हैं कक्षा 7 CAI डेल्टा हाउस से आदि टेलर, जो आपको अपनी कविता सुनाएंगे। दिल खोलकर हंसिए और सुनिए। क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? घर में पाते ही एकांत मैं रटने लगा डार्विन का सिद्धांत। हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे। और जब मैं रट रहा था तब पिताजी अंदर थे। वे आए और चिल्लाए, बोले, ये क्या बकता है, पूर्वजों को बंदर कहता है। सोचा था पढ़ेगा लिखेगा, बाप दादाओं का नाम रोशन करेगा। नाम रोशन तो करना रहा दूर, उल्टा उन्हें बता रहा है अंगूर। पिताजी ने खींच के एक हाथ दिया। मैंने डार्विन साहब को याद किया कि आप तो मर गए, मेरी जान मुसीबत कर गए। बंदर को पूर्वज मानूं तो घर में पिटाई, और ना मानूं तो स्कूल में धुलाई। मैंने सोचा सबसे पूछा जाए और फिर किसी नतीजे पे पहुंचा जाए। मैंने पूछा अपने पड़ोसी से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? वे बोला, तुम्हारे होंगे, हमारे पूर्वज तो अग्रवाल थे। एक दिन दादाजी साई कालीन, आम के भयंकर शौकीन, अपने मित्र राम दुलारे के संग बाजार को गए। आम का दाम सुन राम दुलारे राम को प्यारे हो गए। दादाजी मुंह लटकाए घर वापस आए। मैंने दादाजी से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था? दादाजी बोले रोते रोते, काश हम आज भी बंदर होते तो राम दुलारे यूं नहीं मरता। किसी पेड़ पर चढ़ता, जी भर के आम चूसता, ना बाजार जाता ना भाव पूछता। मैंने पूछा एक मदारी से, क्या आदमी पहले बंदर था? वो बोला, देख भैया, हम आदमियों को बंदरों से मुकाबला नहीं करना चाहिए। कहाँ आदमी कहाँ बंदर, आदमी की आज क्या है कदर। मैं जग बीती नहीं, आज बीती सुना रहा हूँ, अपने घर की बात बता रहा हूँ। मेरा एक बंदर जैसा बेटा है और एक ये बेटे जैसा बंदर। मैंने इसे नचा नचा कर उसे पढ़ाया, लिखाया, MA पास कराया। 3 साल हो गए, आज भी वो नौकरी के लिए मारा मारा घूमता है, और ये बंदर मेरे पूरे परिवार का पेट भरता है। देख भैया, हम आदमियों को बंदरों से मुकाबला नहीं करना चाहिए। हर एक की बात ने मन को छुआ, पर कोई उत्तर तो नहीं मिला। और एक प्रश्न और उठ खड़ा हुआ। अब मैं ये नहीं पूछता कि क्या आदमी पहले बंदर था कि नहीं, तो सवाल खड़ा है वही का वही। अब मैं ये पूछता हूँ कि क्या आदमी भी आदमी है कि नहीं, क्या आदमी भी आदमी है कि नहीं। धन्यवाद। अब आ रही है हंसी का फवारा लेकर कक्षा 7 CAI अल्फा हाउस से महक गोयल, जो अपनी स्वरचित कविता आपको सुनाएंगी। महक गोयल। मेरा नाम है महक गोयल। मैं कक्षा 7वीं सामने स्वयं रचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है विद्यार्थी की विडंबना। कविता प्रतियोगिता में हो गया है मेरा चयन, आईने में अब आप पर है मेरे नयन। श्रोताओं, मेरी गलतियों को करना माफ, श्रोताओं मेरी गलतियों को करना माफ, धुल जाएंगे सारे पाप। को देखने के लिए देती हूँ मैं आपको चक्षु, विद्यार्थियों को देखने के लिए देती हूँ मैं आपको चक्षु, हंस हंस के आ जाएंगे आपकी आंखों से अश्रु। मेरे शिक्षकों एक विषय का ज्ञान, मेरे शिक्षकों एक विषय का ज्ञान, पर मुझसे चाहते हैं जगत विज्ञान। कुछ न आने पर 100 बार पूछने की मुझको छूट प्राप्त, लेकिन पूछते ही मेरे शिक्षक धैर्य समाप्त। अगर का मंक है तो मम्मी का होता है ताना, बाजू वाले पंचायती काका या काकी क्या सोचेंगे, क्या देंगे उल्हाना। बड़ो बताओ, इधर है तो उधर खाई है, ऊपर से आ गया ये ऑनलाइन का जमाना। चोरी ना करूं तो हमेशा मेरा मित्र ही अव्वल लाता, चोरी ना करूं तो हमेशा मेरा मित्र ही अव्वल लाता, और चोरी करूं तो मेरा
उसका दिल जोर जोर से चिल्लाता। टीवी ऑन कर इतनी कम कमरे में पता चला कि घर में कितने जाले हैं, घर में कितने जाले हैं और पंखे कितने काले हैं। कठिन है भाई, मेरा जीवन कठिन है। लेकिन हाँ, इस कोरोना ने ही संभाला। माता पिता का साथ दिया, आराम दिया, कोई छुट्टियों से नई नई बनाने का चस्का लगाया। चित भी मिलती है और पट भी मिलती है। विद्यालय खुल गए तो करेंगे दोस्तों के साथ मौज। विद्यालय खुल गए तो करेंगे दोस्तों के साथ मौज, वरना यूं ही घर पर बैठ के पढ़ेंगे रोज। तसल्ली तो इस बात की है कि प्रश्न पूछते ही नेट गुल हो जाता। तसल्ली तो इस बात की है कि प्रश्न पूछते ही नेट गुल हो जाता। सच में सोते सोते और खाते खाते मजा आता। सुना था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे ना। अब सुना था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे ना, नहीं हो रहा। इतनी जल्दी पूरा हो गया बचपन का ये ख्वाब। और इतना ही नहीं, अगर पढ़ने का ना हो मन तो वायरल बुखार के भी है लक्षण। किसी ने सच ही कहा है, अंत भला तो सब भला। किसी ने सच ही कहा है, अंत भला तो सब भला। लौट कर ये ऑनलाइन बुद्धू घर पे। हम आपको लोट पोट करने आ रहे हैं अपनी एक हरियाणवी कविता के साथ। कक्षा 8वीं से आई गामा हाउस से पार्थ अग्रवाल। आदरणीय टीचर, मेरा नाम है पार्थ अग्रवाल। मैं कक्षा 8वीं से गामा हाउस की तरफ से एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का नाम है सवाल गलत है, अरुण जैमिनी द्वारा प्रसारित। कहते हैं हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। जवाब उल्टे नहीं होते, उसे सवाल ही गलत पूछे जाते हैं। जैसे कि हरियाणा के एक चौधरी साहब कुत्ते को घुमा रहे थे, तो किसी ने पूछा, चौधरी कुत्ते ने घुमावे है के? चौधरी साहब बोले, ना जी ना, ऊंट है, कद छोटा रह गया। देखा आपने, जवाब उल्टे नहीं है, उसे सवाल ही गलत पूछे जाते हैं। तो इसी संदर्भ में हम कविता आगे बढ़ाते हैं। पुलिस के रंगरूटों को दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधेश्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल और राधे ने बना दिया उस सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूँ एसएससी कराने के लिए। साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अगर मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटियां आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूँ, उसे खरीदारी का बहुत है चाव, और उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए? जी, भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो हमेशा पानी खाकर आता है। अच्छा, तुम्हारी बहन जाए कोई? जी, मेरी एक ही बहन थी और उसकी शादी हो गई, अब वो जाने और बहनोई। अच्छा, राधे श्याम, तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं, जिनके दांत नहीं है, वे बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह दोगे तो सिर्फ एक आदमी की और सेब खरीदने भेज दिया पूरा खानदान। तुम्हारा कोई दोस्त है राधेश्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ, कोई खिला दे तो खा जाता है। साहब, आपने भी सवाल को खूब खींचा है, लगता आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो, आप अपने सवाल का जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। पर इतने के कितने? अब वो सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाएगा तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगा? राधे बोला, वाह जी साहब, आपने तो आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहाँ छोड़ा है। आम तो सिर्फ सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है, खरीदने तो खास ही जाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। धन्यवाद। अब आगे का कार्यभार संभालने के लिए तिवारी सर आ रहे हैं। तिवारी सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद शारदा मिस। अंग्रेजी वक्तृत्व प्रतियोगिता और हिंदी वक्तृत्व प्रतियोगिता के प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने
सराहनीय प्रयास किया है। ये सभी छात्र छात्राएं धन्यवाद के पात्र हैं। इन सभी के लिए मैं जोरदार तालियां बजाता हूँ, क्योंकि मैंने देखा चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, सभी विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और अंग्रेजी वाले बच्चे भी हिंदी वालों की बातें सुन रहे थे, हिंदी वाले अंग्रेजी वालों की बातें सुन रहे थे। यह अंग्रेजी हिंदी की बात नहीं रह गई, ये भाषा की बात रह गई। ठीक है, यहाँ हम सभी भाषा वाले ही लोग इकट्ठा हुए हैं अधिकतर, तो सबका स्वागत है। और मैं अभी अंग्रेजी वक्तृत्व प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के सदस्यों श्रीमती खुशनुमा गांधी जी, श्रीमती सुलग्ना बनर्जी जी और मिस डेलना, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि विद्यार्थियों ने जो अभी अपनी कविताएं प्रस्तुत की, उसके बारे में जो आपके विचार हों, जो आपके सुझाव हों, आप उनको दें, ताकि उससे उन्हें भविष्य में फ़ायदा मिले। आपका स्वागत है। Namaste, Yogesh sir, and everybody present. Excellent performance from all the students. I think each of the student was very particular and meticulous about the way they articulated their voices, tone. I felt that the emphasis on different words was given at the right opportunity and moment. So I think it was not like exactly as the rules stated, not in sing-song fashion, but it carried the weight where it was equivalent and necessary. I think that raised the level of the poem to the humor was delivered well. I think the humor in all the poems was delivered very well because the students could stop and punctuate and pronounce correctly and give its emphasis well at the right moments. So I think that delivered the punchlines also very well. We all enjoyed. I enjoyed a lot. I'm sure my colleagues here have also enjoyed a lot. Miss Banerjee, Miss Delna. Hi everyone. Nice to see you all. I've seen you so small. I see now after meeting you people, like after 2 years nearly. Mitansh has grown. Ashita is a young lady. Adi has grown. Mahir also I think has got a mustache now. Rudra, everybody. Mehek, like Josh. I am so happy first of all to see you all after such a long period of time. I kind of remembered our elocution when you used to do in the primary section, and all of you were so good. Keep it up. The humor was well delivered. Memory was very, very good. There was not a miss from anyone, Hindi, English, both. Content was good. Pronunciation was up to the mark. Expression, voice modulation. I'm happy. Keep it up. Okay? You actually made us smile. Really made us smile. Okay, all of you. Bye bye. Delna miss, Good afternoon, everyone. So I'd like to tell you that when I was in school, I used to take part in every debate and every elocution, whether it would be Hindi or Marathi or English. And you guys made me feel that I want to be back with you. I want to be the one who is reciting the poem, and I want Miss Gandhi and Miss Banerjee to judge me. And forget about judging, I just want to enjoy and be with you, do the damal, do the masti. So where my feedback of you was so well prepared. Each of you was confident in the English because, like Fish said, it was the bhasha which was important. And if you dived into it with so much enthusiasm and so much it was child referred to the paper. The content was great. You were great. The confidence which you all had was fabulous. Please remember that the winners is something which, being a competition and having a judge, there will have to be a 1, 2, 3, and so on. But what is important is each of you is a speaker, and today you have come up and spoken like this. Tomorrow you will stand up on stage in the world and fly the flag of HVB proud. And I think that is when Miss Gandhi, Miss Banerjee, me, Miss Aruna, Sir Tiwari, Sir Rakesh, we all will have such a proud moment in our lives to see
children, unlike grown. 10 years from now, the world is your stage. So please keep up this confidence level. None of you seemed nervous. I used to be nervous. My hands used to shake even when I was in jail and singing on stage. But you guys were spot on. Bravo to all of you. Kudos to all of you. And it was a wonderful afternoon. धन्यवाद एल्मा मिस। अब मैं हिंदी निर्णायक मंडल के सदस्यों श्रीमती इंदिरा जी, श्रीमान राकेश कुशवाहा जी और श्रीमान रोहित धीवर जी से निवेदन करता हूं कि हिंदी वक्तृत्व प्रतियोगिता के संबंध में अपने विचार व्यक्त करें और छात्रों को अपने महत्वपूर्ण सुझावों से अवगत कराएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपनी प्रधानाध्यापिका महोदया को धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि मुझे ये अवसर दिया। और मैं तो मैथमेटिक्स का अध्यापक हूँ और मुझे हिंदी ये प्रोग्राम का निर्णायक मंडल में रखा, बड़ा सौभाग्य मेरा। और इतना कठिन कार्य दिया तिवारी जी और आपके हिंदी विभाग ने मुझे, और ये मुझे तो एक कवि सम्मेलन सुनने को मिल गया। इतने सुंदर सुंदर कविताएं और इतने बड़े बड़े कवि यहाँ उपस्थित हैं। इन बच्चों को मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये मेरा पार्थ अग्रवाल जी आज कवि महोदय के रूप में प्रकट हुए और इतना अच्छा सब लोगों ने सुनाया। माहिर, आदि, महक एंड पार्थ। महक तो एक कवित्री है, उन्होंने कविता अपने आप ही लिख डाली है, बहुत अच्छा। और बच्चों, अगर आपका मार्क्स अंकों में अगर कुछ भी होगा ना तो 1-2 पॉइंट का ही होगा। इतना मुश्किल है, समझ में ही नहीं आ रहा कि किसको कितने अंक दिए जाए। मेरा बस चले तो सबको आउट ऑफ, क्योंकि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, आपका कंटेंट बहुत अच्छे थे, आपके फेशियल एक्सप्रेशन इतना अच्छा, और ये हरियाणी कवि भी बहुत अच्छी तरह से हंसा रहे थे। आदि टेलर, राइट, और पार्थ अग्रवाल, महक और माहिर की तो दर्द भरी कहानी लग रही थी, बेचारे का दर्द अगर अलग ही दिखाई दे रहा था। तो बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया और हम लोग सब हंस रहे थे। और आपने हास्य कवि सम्मेलन ही रखा इसका नाम, और हम लोग बड़े सफल हुए इसमें। और मेरी शुभकामनाएं सभी के लिए। हार जीत तो होती रहती है, पहला और दूसरा आपने सोचा, आप सम्मिलित हुए, आपने भाग लिया, वही बहुत महत्वपूर्ण है। और सबने अपना पूरा 100% दिया है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोहित सर। जी सर, धन्यवाद सर इस मौके के लिए। बहुत ही खूबसूरत ये प्रतियोगिता थी। सब बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और मैं उनकी सराहना करता हूँ कि मैंने सोचा नहीं था कि बच्चों के द्वारा इतने सुंदर शब्दों में और ह्यूमरसली, मतलब इतने हंसाने वाले शब्द निकलेंगे उनके मुंह से। जो कोशिश उन्होंने की, बहुत ही बढ़िया कोशिश की। खास करके मैं सराहना चाहता हूँ महक को कि 3 कवि जो थे वो बड़े कवि हैं जिन्होंने ये कविताएं लिखी, और उनके बराबर महक ने वो कविता लिखी है और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उस कविता को सामने रखा है। तो बहुत बड़ी बात है कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी चीज उसने की है। और पार्थ अग्रवाल को मैं उसकी सराहना करना चाहता हूँ कि जो हरियाणवी शैली है, भाषा शैली, वो उसने बराबर से हमारे सामने पहुंचाई है। तो ऐसा लगा नहीं कि पार्थ हरियाणवी नहीं है। बहुत ही अच्छे से उसने वो शब्दों का उच्चारण किया है, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा था उसका। और माहिर के दर्द, हमें जैसे सर ने बताया, उसका दर्द समझ में आया हम लोग को। इतने अच्छे उसके एक्सप्रेशंस थे। और आदि ने भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें हंसाया है। और सचमुच हम बंदर बन चुके हैं या इंसान है, ये सोचने पे उसने मजबूर किया है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन चारों ने अपनी अपनी सोचों को, कविताओं को सामने रखा। तो बहुत बहुत बढ़िया बात आज मुझे सुनने मिली है और मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ इन चारों से। सो धन्यवाद इस मौके को हम मुझे देने के लिए। Nothing can stop the HVBN from doing the best. Whatever it is, whether it is a corona or whether it is lockdown or anything, we are going to perform and do the best. And that's what my kids have done. My kids is because tell them kids because they were all there in the pre-primary and the best always. And really they have performed excellent. And I really agree with Kushwa sir. It's very difficult whom to, you have to made us judges. It's the tough time. Whoever is, whether you're first, second, or third, all of you are the best. And really, we enjoyed it. And thank you, sir, for giving us this opportunity to judge. Otherwise, really would have missed out so much, such a nice program. Each one were one better than the other. Thank you, children. Thank you, sir. धन्यवाद मिस। मुझे याद आता है कि अपनी प्रधानाध्यापिका महोदया कहा करती हैं,
सो मस्ट गो ऑन। कोरोना हो चाहे मरोना हो, हमारा कार्यक्रम चलता ही रहा है और चलता ही रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। इसके बाद मैं हिंदी निर्णायक मंडल के सदस्यों श्रीमती इंदिरा मिस, श्रीमान राकेश कुशवाहा जी और श्रीमान रोहित धीवर जी को हिंदी वक्तृत्व प्रतियोगिता के निर्णय करने के कठिन उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आपने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम में चार चांद लगाकर हमें कृतार्थ किया। आप लोगों के महत्वपूर्ण और उपयोगी परामर्श छात्रों की प्रतिभा निखारने में कारगर साबित होंगे। मैं हाउस मास्टर्स को कैसे भूल सकता हूँ, भले ही वे यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं है मगर परोक्ष रूप से अवश्य है, क्योंकि उनका प्रशिक्षण, उनका विद्यार्थियों का चयन, कविताओं का चयन, ये सब इसमें परोक्ष रूप से शामिल है। अल्फा हाउस के हाउस मास्टर श्रीमान आशीष सिंह जी, बीटा हाउस के हाउस मास्टर श्रीमान शैलेश गांधी जी, गामा हाउस के हाउस मास्टर श्रीमान करण जी और डेल्टा हाउस के हाउस मास्टर श्री रवि सर जी, आप सबके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के उत्साह, सहभागिता, समय समय पर मार्गदर्शन और सहयोग के बिना यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सकता था। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इसके बाद मैं अंग्रेजी और हिंदी विभाग के अध्यापक अध्यापिकाओं, साथ ही विद्यार्थियों, इन सबको धन्यवाद देता हूँ। इन सब ने मेहनत की है, सबने परिश्रम किया है, तब जाकर यह कार्यक्रम इस तरह से सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया कि हर एक चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी, हर कोई इस कार्यक्रम से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों में भी आप सभी लोग पूरे तन मन धन से सहयोग करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। So I'm announcing now, Aruna ma'am, and my dear other panelists. So for English elocution, the first place is with Ashita Kamath. The second place is with Jash Shavani from Beta House. And the third place is for Rudra Bagaria, Gamma. हाँ जी, तो हिंदी में पार्थ अग्रवाल गामा हाउस, सवाल गलत है। प्रथम स्थान है और द्वितीय स्थान पर है आदि टेलर डेल्टा हाउस से, यहाँ हमारे पूर्वज बंधक थे। और तृतीय स्थान है माहिर शाह बीटा हाउस से, रेल यात्रा। सभी हुए खुश, कार्यक्रम में आई बहार। सभी हुए खुश, कार्यक्रम में आई बहार। व्यक्त करना चाहता हूँ मैं आप सबके प्रति आभार। व्यक्त करना चाहता हूँ मैं आप सबके प्रति आभार। इस कार्यक्रम हेतु मूल्यवान मार्गदर्शन एवं प्रेरणा देने वाली प्रधानाध्यापिका डॉक्टर चंद्रकांता पाठक जी, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि बिना उनके मार्गदर्शन, बिना उनके प्रेरणा के यह कार्य इस तरह से संभव नहीं हो सकता था। क्योंकि ऐसे में हम अध्यापकों को और विद्यार्थियों को एक मौका मिलता है कि हम अपने अगर प्रतिभा, छिपी हुई प्रतिभा है तो उसे बाहर निकालें। ये जरूरी भी है, जो पारखी होता है वही पहचानता है, एक अवसर देता है। जो लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन मौका न मिलने के नाते पता ही नहीं चलता कि उसकी प्रतिभा है भी, ये जरूरी है मौका देना कम से कम। तो ये मौका मिलता रहता है सभी भाग्यशाली लोगों के लिए। इसके बाद मैं अंग्रेजी वक्तृत्व प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के सदस्यों श्रीमती खुशबा गांधी जी, सुलग्ना बनर्जी जी और मिस डेलना जी के प्रति दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने निर्णय करने का ये जो महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है और अपने उपयोगी सुझाव इन छात्रों को दिया है। उम्मीद करता हूँ इन सुझावों के द्वारा ये विद्यार्थी भविष्य में अवश्य ही लाभान्वित होंगे, इसका फायदा इन्हें अवश्य ही मिलेगा। इसके बाद मैं हिंदी निर्णायक मंडल के सदस्यों श्रीमती इंदिरा मिस, श्रीमान राकेश कुशवाहा जी और श्रीमान रोहित धीवर जी को हिंदी वक्तृत्व प्रतियोगिता के निर्णय करने के कठिन उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आपने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम में चार चांद लगाकर हमें कृतार्थ किया। आप लोगों के महत्वपूर्ण और उपयोगी परामर्श
छात्रों की प्रतिभा निखारने में कारगर साबित होंगे। मैं हाउस मास्टर्स को कैसे भूल सकता हूँ, भले ही वे यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं है मगर परोक्ष रूप से अवश्य है, क्योंकि उनका प्रशिक्षण, उनका विद्यार्थियों का चयन, कविताओं का चयन, ये सब इसमें परोक्ष रूप से शामिल है। अल्फा हाउस के हाउस मास्टर श्रीमान आशीष सिंह जी, बीटा हाउस के हाउस मास्टर श्रीमान शैलेश गांधी जी, गामा हाउस के हाउस मास्टर श्रीमान करण जी और डेल्टा हाउस के हाउस मास्टर श्री रवि सर जी, आप सबके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के उत्साह, सहभागिता, समय समय पर मार्गदर्शन और सहयोग के बिना यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सकता था। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इसके बाद मैं अंग्रेजी और हिंदी विभाग के अध्यापक, अध्यापिकाओं, साथ ही विद्यार्थियों, इन सबको धन्यवाद देता हूँ। इन सब ने मेहनत की है, सब ने परिश्रम किया है, तब जाकर यह कार्यक्रम इस तरह से सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया कि हर एक चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी, हर कोई इस कार्यक्रम से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों में भी आप सभी लोग पूरे तन मन धन से सहयोग करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।